ડ્રીમ છે, સફળતા એક લક્ષ્ય છે। આંખોમાં અનેક સપનાઓ લઈ આજે દરેક વિદ્યાર્થી વિચારે છે કે પરિણામ પછી શું કરવું, કયા ક્ષેત્રમાં જવું, જે તે ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે કે નહીં। આ દરેક પ્રશ્નોના જવાબ હવે તમને આપશે જીએસટીવી। જુઓ કરિયર ગાઈડ, જીએસટીવી નો એક અદ્ભુત કાર્યક્રમ દર શનિવારે સાંજે 7:30 વાગ્યે માત્ર જીએસટીવી પર। ફ્રેક્શન્સ ઓફ સેકન્ડ્સમાં થઈ જતું ફાસ્ટેસ્ટ ટેકિંગ, ટેબલ ટેનિસના બોલને હિટ કરતું ઓનલાઈન હિટ બેબી, માતાના ગર્ભમાંથી તાળીઓ પાડતું આ બેબી કહી રહ્યું છે આઈ એમ હેપી ઇનસાઇડ। અને દરિયાઈ પક્ષીઓની અદ્ભુત અને વિશાળ કોલોની। જુઓ અજબ ગજબ રવિવારે રાત્રે 9:30 કલાકે। નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું વિશાલ। કોઈ એક વ્યક્તિત્વમાં વારસામાં મળેલા સંસ્કારો અને પરંપરા જાળવવી, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, કલા અને પ્રેમ સદભાવના જેવા અદ્ભુત તાળમેલની કલ્પના કરવી હોય તો તે લક્ષ્યરાજસિંહ મેવાડ જ હોઈ શકે। પછી ચાહે તે દુનિયાની પ્રાચીન રાજવંશ પરંપરાનું પાલન હોય કે પછી સામાજિક જવાબદારીઓ અદા કરવાની હોય, આ તમામ વ્યવસ્થાઓની વચ્ચે કળા, પ્રેમ બધું જ પૂરેપૂરા ટાઈમ મેનેજમેન્ટની સાથે સંપૂર્ણ સમર્પણ ભાવ સાથે કરે છે। આ બધી જ ખાસિયતો કોઈ વડીલ અને અનુભવી વ્યક્તિમાં નહીં, પરંતુ જેણે હજુ યુવાવસ્થામાં જ કદમ માંડ્યા છે તેવા વ્યક્તિમાં મોજૂદ છે। કદાચ એટલે જ ભારતીય રાજવંશની પરંપરાઓમાં મેવાડ રાજવંશને સૌથી સમૃદ્ધશાળી અને ગૌરવશાળી રાજવંશ માનવામાં આવે છે। ઉદયપુરના શ્રીજી અરવિંદસિંહજી મેવાડ અને શ્રીમતી વિજયાકુમારી મેવાડના સૌથી નાના સંતાન લક્ષ્યરાજસિંહ ઉદયપુર રાજઘરાનાના રાજકુમાર છે। ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં રાજકુમારી નિવૃત્તિસિંહ સાથે વિવાહના બંધનમાં બંધાયા। લક્ષ્યરાજસિંહ HR ગ્રુપ ઓફ હોટેલ્સના સંસ્થાપક અરવિંદસિંહજી મેવાડના સુપુત્ર છે। ઓસ્ટ્રેલિયાથી બિઝનેસ અને હોટેલ મેનેજમેન્ટનું શિક્ષણ મેળવી ચૂકેલા લક્ષ્યરાજસિંહજી ઉદયપુર ક્રિકેટ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ પણ છે। તેમણે રાષ્ટ્રપતિ સહિત અનેક મોટી સંસ્થાઓ તરફથી લક્ઝરી હોટલ્સ અને પર્યટન સહભાગિતા યોગદાન બદલ એવોર્ડ્સથી નવાજવામાં પણ આવ્યા છે। રાજકુમાર લક્ષ્યરાજસિંહ મેવાડ ઉદયપુરના યુવાનોના આદર્શ ગણાય છે। ઉદયપુર ક્રિકેટ સંઘના પ્રેસિડેન્ટ પણ છે તેઓ। રાજસ્થાનમાં ક્રિકેટના વિકાસમાં પણ તેઓ રસ ધરાવે છે। દેશી વિદેશી મેગેઝિનોમાં લક્ષ્યરાજસિંહની રેગ્યુલર નોંધ લેવાય છે। ટુરિઝમના ડેવલપમેન્ટમાં તેમનું અનેરું પ્રદાન છે। તેઓ સૂફી સંગીતના શોખીન પણ છે। તો ભક્તિ અને શક્તિની શૌર્ય ગાથાથી ભરપૂર મેવાડની ધરતી પરથી આવેલા પ્રિન્સ લક્ષ્યરાજસિંહનું આજે જીએसटीवी स्टूडियो में स्वागत है। वेलकम लक्ष्यराजसिंह जी। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि वेडिंग टूरिज्म का रॉयल वेडिंग टूरिज्म के कॉन्सेप्ट के तहत राजस्थान के टूरिज्म का विकास हुआ, उसके नए आयाम पर ले जाने के लिए कैसे प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं?
जी देखिए, आज के जो ट्रेंड्स हैं और जो चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, उससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बिल्कुल मुकाम तक रहें और उनको मुकम्मल करें। कनेक्टिविटी है, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, वो चीज़ें जो हैं आज उदयपुर में आ पा रही हैं। फैसिलिटीज़ जो हैं आज वो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई क्वालिटी का हो गया है और आज की तारीख में शादी करने के लिए जो लोगों को व्यवस्थाओं की जो ज़रूरत पड़ती है, वो सारी आज उदयपुर में मुहैया हैं। और ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो उदयपुर का अन्य क्षेत्रों से और शहरों से भारत के वो काफ़ी बेहतर हुआ है, तो उससे हमारे को काफ़ी मदद मिलती है। और आज की तारीख में इंटरनेशनल, नेशनल वेडिंग्स जो हैं आज हम उदयपुर में ला पा रहे हैं। ज़्यादातर रॉयल फैमिली के अलावा भी बड़े बड़े वेल नोन फैमिली जो होते हैं वो रॉयल वेडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, तो उनके लिए क्या क्या डिमांड रहती है? देखिए, डिमांड्स तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, सबकी बड़ी निजी और पर्सनल होती हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी खुद की निजी सोच के साथ में, अपने खुद के शौक़ के साथ में चीज़ों को लेके आते हैं। कोई फूलों के अंदर बहुत दिलचस्पी लेते हैं, कोई पकवानों में, अलग अलग पकवानों में बहुत बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, कोई कैंडल्स को और व्यवस्थाओं को लेकर बहुत दिलचस्पी लेते हैं। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी निजी तरीके की सोच और शौक़ होता है। कोई गाड़ियों के अंदर बहुत शौक़ लेते हैं, तो सबका अपना अपना एक होता है। बट पूरी तरीके से उन लोगों का ये रुझान और दिलचस्पी रहती है कि किसी प्रकार से शादी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो, अच्छी हो और इन सारी चीज़ों को मिलाकर हो, पर सबके अपने निजी व्यक्तिगत सोच और शौक़ ज़रूर होते हैं। ज़्यादातर फॉरेनर्स भी अब रॉयल वेडिंग के तहत राजस्थान में आना चाहते हैं, उनकी कोई खास ट्रीटमेंट रहती है? क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है अगर अब्रॉड से कोई फॉरेनर जो मैरिज करने के लिए, रॉयल वेडिंग के लिए राजस्थान आते हैं तो? जी ज़रूर, देखिए वो एक दूसरे कल्चर से आते हैं, दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो लोग भी अपने हिंदुस्तानी संस्कृति और परंपरा के अंदर बहुत शौक़ लेते हैं। इस वजह से वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, उदयपुर आना चाहते हैं, राजस्थान आना चाहते हैं। तो उनके लिए अलग से उनके जैसे खाने का होता है, तो उनको हिंदुस्तानी खाना पूरी तरीके से नहीं बैठ पाता, तो उनके लिए दूसरी तरीके की भी, दूसरे खानों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जब वो वहाँ पर आते हैं, सलाह करते हैं, पूछते हैं, चर्चा करते हैं, तब इनको इन चीज़ों के बारे में हम लोग बताते हैं, ज्ञान देते हैं और इतला देते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है अलग से होती हैं, तो वो फिर उस हिसाब से उनका रुझान लेते हैं। और संस्कृति के बारे में जो उनको थोड़ी सी कम जानकारी होती है, वो भी उनको पूरी तरीके से बताई जाती है। पर उदयपुर की खूबसूरती और उदयपुर की जो जगह है, वो खास तौर पे उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। उदयपुर की जो झीलें हैं, जो आज की तारीख में बिल्कुल भरी हुई हैं, जिनमें पानी है, जो मगरियाँ हैं आजू बाजू में, वो उसको बहुत खूबसूरत बनाती है। महल जो नदी के तालाब के किनारे जो बने हुए हैं, उन चीज़ों को देखकर खास तौर के ऊपर वो काफ़ी आकर्षित होते हैं। और जिस तरीके से आज उनका रखरखाव हो रहा है और वो अच्छा है, तो वो भी उन्हें बहुत दिलचस्पी देते हैं और रुझान बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लेक पैलेस पे फोकस ज़्यादा रहता है लोगों का, अन्य स्पॉट पे भी ज़्यादातर वेडिंग होने की कॉन्सेप्ट के लिए आपने सोचा है कुछ? देखिए, लेक पैलेस तो ठहरने की जगह है जहाँ पे वो अक्सर लोग आकर ठहरते हैं। और उसके अलावा जो मेन जो शादियाँ होती हैं, वो एक आइलैंड है जिसका नाम है जगमंदिर आइलैंड पैलेस। एग्जैक्टली। उसके ऊपर जो है वो शादियाँ जो है अधिकतर उधर होती हैं। वो काफ़ी लोगों के दिल और दिमाग में और जहन में काफ़ी उतरा हुआ है, और उन जगहों को देखकर लोग बहुत रोमांचित होते हैं। उसको देखकर लोग काफ़ी आते हैं, तो उन जगहों को हम बढ़ा रहे हैं। और हर शादी के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से हर चीज़ के अंदर, हर अगली चीज़ के अंदर कुछ तब्दीली, बदलाव लाने का ज़रूर प्रयास करते हैं। अक्षरा जी, विश्व प्रसिद्ध पैलेस को अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और फॉरेन विजिटर्स को आकर्षित करने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजिक बदलाव किए हैं उसमें? देखिए, सबसे पहले तो आज के जो ट्रेंड्स हैं उनको अपकीप करने की कोशिश करिए, और जो काफ़ी सारे हिस्से हैं जो महलों के नहीं खुले थे, जैसे हमारा म्यूजियम्स हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, तो उनको और हम लोगों ने जो है वो खोला है। आज जैसे पेंटिंग गैलरी है, स्कल्पचर गैलरी है, टेक्सटाइल गैलरी है, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें आज मेवाड़ की जो विरासत है उनको हम लोग खोल रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, जो और हमारी संस्कृति और परंपरा को लोगों के साथ में बांट सकें, हमारे घरों के दरवाजे जो हैं लोगों के लिए और खोल सकें, उनके साथ में और चीज़ें, जानकारी हम लोग आदान प्रदान कर सकें, बांट सकें। तो इस प्रकार से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, इस दिशा के अंदर भी काम चल रहा है। वेडिंग्स जो है वो मेनली उदयपुर को वर्ल्ड मैप के ऊपर लाने के लिए उन्होंने काफ़ी मदद करी, पर उसके अलावा महाराणा प्रताप की जो ये भूमि है, शौर्य की जो ये भूमि है, उसको भी लेकर बहुत कुछ काम हो रहा है, म्यूजियम्स में काम हो रहा है। और पूरे विस्तार से तो आपको पता पड़ेगा कि अगर आप उदयपुर आएंगे, राजस्थान आएंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे, तो आपको ठीक तरीके से, दुरुस्त तरीके से जरूर और जानकारी मिलेगी। जी, पिछले कुछ वर्षों में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन यानी कि मंदी का माहौल देखने को मिला। इसका प्रभाव भारत के टूरिज्म सेक्टर पे भी पड़ा है, और पड़ा है तो किस तरह से पड़ा है और किस तरह से मैनेज हुआ है वो? देखिए, वो बड़े एक मुश्किल वक्त था, चुनौती भरा वक्त था और बड़ा मुश्किल वक्त था वो।
और पर अब धीरे धीरे जो है पिछले 6-8 महीने के अंदर, साल भर के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर तब्दीली आ रही है, बदलाव आ रहे हैं। वीज़ा के प्रोसेसेस जो हैं वो काफ़ी अब आसान हुए हैं, उससे टूरिज्म के अंदर बढ़ावा आने का पूरी उम्मीद है। और उस रिसेशन के मौके के ऊपर सबसे ज़्यादा मदद अगर हमारे को हुई तो वेडिंग सेगमेंट से सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि शादियाँ होनी थी तो उसके अंदर लोगों ने जो है किसी भी प्रकार से कटौती नहीं करी, उस चीज़ को बढ़ावा फिर भी दिया और उस तरीके से हम लोग हमारे आप को सर्वाइव कर पाए और उस मुश्किल घड़ी और उस मुश्किल दौर से हम लोग निकल पाए। तो प्रेडोमिनेटली जो मेन जो क्रेडिट जाता है वो वेडिंग सेगमेंट को जाता है। जी, रॉयल टूरिज्म के विकास के लिए यह इंडस्ट्री सरकार से क्या आशा रखती है? पॉलिसी लेवल के कैसा बदलाव होना चाहिए जिससे इस इंडस्ट्रीज में पुशअप हो? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि कनेक्टिविटी जो है उदयपुर की और राजस्थान की वो बेहतर हो, जिससे कि लोग इस क्षेत्र के अंदर आसानी से आ सकें। अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो अपने आप लाजमी है कि वहाँ का टूरिज़्म, वहाँ की और भी दूसरी जो कलाएँ हैं वो भी सारी चीज़ें बदलेंगी और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी मिलेगी। और लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल वहाँ पर आने से केवल व्यक्तिगत किसी 1 या 2 लोगों को कोई निजी फ़ायदा नहीं होता है, पूरे के पूरे क्षेत्र को फ़ायदा होता है। चाहे वो फूल वाला हो, चाहे वो केक बनाने वाला हो, चाहे वो मोमबत्ती बेचने वाला हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को जो है नीचे से लेके ऊपर तक हर व्यक्ति को जो है वो मदद मिलती है। और इससे आगे भी जो है वो अगर लोग आएंगे तो और भी दूसरी जो मरती हुई कलाएं हैं उस क्षेत्र की और जगह की वो भी वापस जीवित होगी। जैसे मिनिएचर आर्ट और पेंटिंग है, वो उदयपुर और मेवाड़ की एक बहुत ही करीबी और बहुत ही गहरी कला है उदयपुर की, वो भी वापस जीवित होगी। उनको भी बहुत सारी चीज़ों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगा। तो आज की तारीख में अगर दरख्वास्त करेंगे तो कनेक्टिविटी की करेंगे, रेल से हो चाहे ब्रॉड गेज की हो और एयरक्राफ्ट की कनेक्टिविटी हो, चाहे जयपुर से हो, दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, बेंगलोर से हो, चेन्नई से हो। अगर यहाँ से अगर उदयपुर को अगर जोड़ा जाएगा तो ज़रूर उदयपुर को, टूरिज्म को और भी अन्य क्षेत्रों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके मुताबिक उदयपुर के अलावा ऐसे राजस्थान में कौन कौन से स्पॉट है जहां ये वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है, या फिर होटल इंडस्ट्रीज को और वेडिंग डेस्टिनेशन दोनों का फोकस एक साथ हो सके? देखिए, उदयपुर के आजू बाजू में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कुंभलगढ़ है, राणकपुर है, चित्तौड़ है। इन सारी चीज़ों की कथाएं हम लोग स्कूल में सुना करते हैं, अपने इतिहास की किताबों में सुना करते हैं। पर आज की तारीख में ये जगहें भी है जहाँ पे इन जगहों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। पर बात, जैसे मैंने आपको पहले निवेदन किया, उसी के ऊपर आती हैं कि कनेक्टिविटी की, कि उनसे अगर जोड़ा जाएगा तो ज़रूर इन चीज़ों को प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी इतिहास का ये देश पूरा जो है एक भंडार है, तो उदयपुर और मेवाड़ तो उसके अंदर एक हिस्सा है। तो अगर आज हम इन चीज़ों को प्रोत्साहन देंगे तो कहाँ से कहाँ अपन पहुँच सकते हैं। गुजरात अपने आप में एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर हम देखें इनको सालों वर्ष पहले कहाँ था और आज देखें इतने सालों के अंदर ये चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो इसके अंदर ये बात आती है कि द वर्ड इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल, मतलब नामुमकिन शब्द खुद कहता है कि मैं मुमकिन हूँ। तो ये छोटा सा प्रोत्साहन और अगर मदद मिलेगी तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। जी, आपने राजस्थान में फोकस तो फिलहाल किया है, पर भारत के अन्य स्टेट में भी टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग है? जी नहीं, फिलहाल तो राजस्थान के ऊपर है, क्योंकि वही अपने आप में, जैसे अभी आपने बताया, बिल्कुल दुरुस्त बताया कि पिछले कुछ सालों का जो रिसेशन रहा वो एक बहुत ही चुनौती भरा समय रहा। तो आज उसके अंदर ग्रो करना अपने आप में एक बहुत कठिन काम था। तो जो चीज़ थी उसको अवेरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसको आज हम कर पाए और उससे अब धीरे धीरे बाहर निकलने का एक प्रयास हो रहा है। तो फिलहाल तो अभी राजस्थान के बाहर का नहीं है, राजस्थान के अंदर का है, जिसको हम लोग एक अलग तरीके से वापस कायम कर और उसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ચોક્કસથી ટુરિઝમને ડેવલપ કરવાનો પ્રયાસ લક્ષરાજસિંહ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. આજ મુદ્દે અને આવા અન્ય મુદ્દે પણ ચર્ચાનો દોર આપણે આગળ યથાવત રાખીશું. સમય થયો છે એક બ્રેકનો, લઈએ એક બ્રેક.
મહાદેવના દેવતા કારોને આપશે ગતિ. જુઓ સંકટ મોચન હનુમાન શનિવાર સવારે 8:30 કલાકે, બપોરે 4:30 કલાકે. वेलकम बैक. चर्चा कर रहा है प्रिंस ऑफ मेवाड़ लक्षराज सिंह साथे. लक्षराज जी, स्वागत है फिर से जीएसटीवी में. मैं पूछना चाहूंगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस आप कर ही रहे, पर एक रॉयल फैमिली है, समाज से भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, तो समाज के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं और पब्लिक की एक्सपेक्टेशन भी रहती है, रॉयल फैमिली है तो क्या क्या कर रहे हैं समाज के लिए आप? जी, देखिए, मेन जो हमारा जो बिजनेस है वो ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया वो टूरिज्म के ऊपर है, पर उसके अलावा एक हमारा फाउंडेशन भी है जिसको महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम से दादाजी ने स्थापित किया था, शुरुआत करी थी, और अब उसको मेरे पिताश्री जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं और उसके अंदर हम भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. उसके अंदर खास तौर के ऊपर हमारे 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी चलते हैं जिसके अंदर तकरीबन हम लोग अभी 4000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनका नाम महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल और महाराणा मेवाड़ विद्या मंदिर है. और स्कॉलरशिप के ऊपर काफी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और कम फीस के ऊपर काफी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. तो समाज की तरफ एजुकेशन के लिए, चाहे गर्ल चाइल्ड हो, बाकी के बच्चे हों जिनको शिक्षा एक अच्छे स्तर के ऊपर जिन्हें नहीं मिल पाती, उनके लिए एक कोशिश और प्रयास है जो करते हैं. फाउंडेशन और भी बाकी दूसरे क्षेत्रों के अंदर मेहनत करता है लोगों को मदद करने के लिए. अभी हाल ही में एक स्कूल को संस्था ने, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ने गोद लिया था. एक बालिकी विद्यालय है जो उदयपुर के अंदर है. 150 वर्ष पहले उसको स्थापित किया था मेरे पूज्य दादाजियों ने. उनको आज हमने वापस गोद लिया है, उसकी पूरी मरम्मत कराई है, उसको वापस दुरुस्त कराया है. तो लोग आज की तारीख में कहते हैं कि महिला शिक्षा बहुत जरूरी है, जो कि हमारे घर परिवार ने 150 साल पहले उस स्कूल को सिर्फ महिलाओं के लिए बनवाया था और आज 150 साल पूर्व हम ही उसे वापस दुरुस्त करा रहे हैं, जो आज की तारीख में सरकार चला रही है. ये खुशी मिलती है जो सिर्फ फाउंडेशन के माध्यम से मिल पाती है. और इस तरीके से हम हमारा जो लोगों के प्रति जुड़ाव और लगाव, जो मोहब्बत हमारे को उनसे मिलती है, उससे हम छोटा मोटा प्रयास करके उन्हें वापस पहुंचाने की कोशिश करते हैं. बाकी फाउंडेशन और भले सेना की जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें वापस मदद करती हैं, और भी अन्य क्षेत्रों के अंदर हम लोग काफी काम करते हैं. जरूर. आप उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हो और क्रिकेट में भी काफी दिलचस्पी रखते हो. आगे के दिनों में राजस्थान के युवाओं को नेशनल क्रिकेट में आप कहां देख रहे हो और राजस्थान क्रिकेट के विकास के लिए क्या सोचा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात रही कि 77 साल में पहली बार हम पिछले कुछ वर्ष पहले रणजी ट्रॉफी को पहली बार राजस्थान क्रिकेट ने जीता, जो मेरे एक दादाजी का सपना था. और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि उनके कार्यकाल के अंदर हम लोग 8 बार लगातार फाइनल तक पहुंचे और 8 बार लगातार हम लोग बॉम्बे के खिलाफ हम लोग हारे थे. और उनका ये सपना था कि एक बार बॉम्बे से जरूर जीतना है, पर ईश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया और उनके पहले उनका निधन हो गया. 77 साल बाद वो दायित्व जो है वो हमारे कंधों के ऊपर आया और उसको हमने पहली बार जीता. तो वो एक बड़ी खुशी की बात थी और वो मैं मानता हूं कि एक बहुत ही स्वर्ण समय वापस आज राजस्थान क्रिकेट के लिए, मेवाड़ क्रिकेट के लिए वापस आया है. और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कोई लड़के निकल कर आगे पहुंचे. और हाल ही के अंदर हमारा अंडर 19 का इंडिया का जो कैप्टन, वर्ल्ड कप का जो कैप्टन था कुछ वर्ष पहले, वो उदयपुर से आया. इंडिया ए का जो वाइस कैप्टन था वो उदयपुर से आए. और अंडर 16, अंडर 14 के जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं. तो जो बीज आज की तारीख में जो बोया जा रहा है वो अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई जल्द जो है वो हिंदुस्तान के लिए उदयपुर से खेलेगा और परचम लहराएगा. जी, आपके ससुर जी कनकवर्धन सिंह जी ओडिशा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है. नवीन पटनायक सरकार ने 2 बार उनमें मंत्री भी रह चुके हैं. आपके ससुर जी है संगीता सिंह जी भी 2 बार सांसद रह चुके हैं. तो आपने कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में जाने का सोचा है? जी, दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कोई विशेष मैंने ठोस नहीं सोचा. तो मैं इस प्रकार से आपको कुछ हाँ या ना व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह सकता था. पर हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि दरवाजे जरूर खुले हैं और बड़ा प्यार और मोहब्बत मिली लोगों से कि आने के लिए, जुड़ने के लिए. अब ये वक्त और समय ही है, अब किसी ना किसी मोड़ पर जरूर पहुंचाएगा और अगर ऐसी कुछ चीज होगी तो जरूर लोगों के साथ में और आपके साथ में जरूर बांटेंगे.
आपका नेताओं के साथ साथ अभिनेताओं से भी पुराना नाता है, आपका लुक भी डैशिंग है, तो आपने कभी फिल्मों में जाने का भी सोचा है क्या? जी नहीं, अब ये बाहर से ही जितना काम कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं उसके अंदर करने का प्रयास करते हैं। और आप जैसे से जो लोगों से जो मोहब्बत मिल रही है और आपके माध्यम से जो मोहब्बत मिल रही है उसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। और काम अच्छा करें, उसकी हमारे को शाबाशी मिले, मोहब्बत मिले, उसी से हम अभी काफी खुश हैं। लक्षराज सिंह जी, टूरिज्म के अलावा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या क्या आपने सोचा है, आपका गोल क्या है, क्या क्या कुछ करने का मन बनाया हुआ है आपने? जी, जहन में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी फिलहाल तो टूरिज्म को लेके और होटल्स को लेके, हॉस्पिटैलिटी को लेके, म्यूजियम्स को लेके, चैरिटीज़ को लेके, ट्रस्ट को लेकर काम करने का काफ़ी दिलचस्पी है, विचार है। तो अभी उसी के अंदर पूरी तरीके से भिड़े हुए हैं क्योंकि उसके अंदर काफ़ी काम करना है और पिताश्री से भी काफ़ी कुछ सीखना है। उन्होंने इतना कुछ इतने वर्षों के अंदर हासिल किया है, तो वो एक तजुर्बा जो उनके अंदर है वो उनके साथ में रहकर पूरी तरीके से देखना है, समझना है, स्पंज की तरह रहना है कि जितना वो सिखा रहे हैं उसको पूरी की पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें। जो आने वाला सफर हमारा जो हो, आने वाला जो भविष्य जो है हमारा कल परसों जो आएगा उसको हम बखूबी निभा पाएं और पूरी मेहनत और लगन और जुझारूपन और कर्मठता से उस चीज को निभा पाएं। ये फिलहाल आज का है सोच और इसी के साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे। और अगर आगे आने वाले समय के अंदर कोई रास्ते मिलेंगे, कोई और चीजें दरवाजे के ऊपर आके खटखटाएंगी तो जरूर उनको पूरी दिल से दिमाग से देखेंगे और उसके अंदर भी जरूर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहेंगे। आपने राजस्थान टूरिज्म को राजस्थान में डेवलप किया है, पर फॉरेन के टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए आपने अब्रॉड में भी कुछ किया है जिससे राजस्थान में लोग आए, भारत में लोग आए? जी, देखिए मार्केटिंग ऑफिसेज और ये सारी चीज़ें अपने को खोलनी पड़ती है, पर ये आपको समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि आज की तारीख में अगर एक वेस्टर्न फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आ रहा है हमारे देश के अंदर, तो वो आज हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी जगह से प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर आ रहा है। तो उन लोगों के हिसाब से जो चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती है और उन तक जो जानकारी पहुँचानी पड़ती है वो कोशिश हम लोग ज़रूर करते रहते हैं। चाहे वो टूरिज्म फेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना हो, वेडिंग कॉन्क्लेव्स के अंदर पार्टिसिपेट करना हो, ये सारी जगहें जो है वो विदेश के अंदर ये चर्चित होती हैं, तो वहां हम जरूर जाके उसके अंदर दखल रखते हैं, उधर जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे भी हमारी बात को कहते हैं, रखते हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि अगर लोगों को जानकारी मिलेगी तो वो जरूर आएंगे। तो ये पिछले कुछ वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं कि वेस्टर्न सेगमेंट के अंदर, चाहे वो यूरोप में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो, अब भले मिडिल ईस्ट में हो, तो इन सारे सेगमेंट्स को भी हम लोग टैप कर रहे हैं, उधर जाके जानकारियां दे रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही इन चीजों का रिजल्ट आ रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। और इस चीज के लिए मैं आपको और आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये हमारी बात उन तक यहाँ बैठे हिंदुस्तान के अंदर बैठे बैठे पहुंच रही है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है और इससे लोग आकर्षित होंगे और आएंगे और हमारे को मदद मिलेगी और हमारी इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। लक्षराज सिंह जी, आप रॉयल फैमिली से है, फिर भी डाउन टू अर्थ है, आपका पूरा फैमिली डाउन टू अर्थ है। राजस्थान में काफी समस्याएं भी थोड़ी बहुत है, तो आप पॉलिटिक्स में नहीं है, फिर भी किस तरह से वो समस्याओं को हल करने का सोच रहे हैं और क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो आप सॉल्व करना चाहते हैं? देखिए, आज की तारीख में यूथ सबसे ज़्यादा मेरे से जुड़ा हुआ है और वो मुझे बड़ा प्रेरित करता है और मेरे को भी प्रेरणा उनसे मिलती है कि जब वो आपको इतनी प्यार मोहब्बत देते हैं तो उनसे आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। आज भी जैसे कि मैं यहाँ हूँ तो मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर गया था, वहाँ मेरा एक टॉक था, मेरा लेक्चर था, उनको मैंने जीवन के ऊपर और अपने कुछ उदाहरण से मैंने उन लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करी। तो हम लोग यही उनको कहना चाहते हैं कि सही रास्ता चुनें, अपने ज़िंदगी के अंदर सही निर्णय लें, सही फैसला करें और उससे वो एक अच्छा पैगाम ले जाएं और आगे बढ़ें और अपने जीवन को भी सुरक्षित करें और अपने जीवन के अंदर जो लोग आएंगे उनके साथ में जो जुड़ेंगे उनको भी जो है वो मदद मिलेगी और उनको आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा। तो यही कहना चाहते हैं कि अपनी सोच को इतनी मत गहरी करो कि अपने फैसले कमजोर होने लग जाएं। तो युवाओं को लोगों के आजू बाजू के तजुर्बों का पूरा फायदा उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, हर घर के अंदर जैसे हर क्षेत्र है या स्टेट को अगर अपन एक घर मारें, हर स्टेट के अंदर समस्याएं होती हैं, पर उनको मिलजुल कर अगर लोग कंधे से कंधा मिलाएं तो जरूर उससे अपन निपट सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। और जहां देखिए एक रसोई के अंदर एक बर्तन से ज्यादा बर्तन होंगे तो आवाज होना लाजमी है, तो वो तो अपने को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब फिलहाल यूथ भटका हुआ है काफी, इंडिया भी, पूरी इंडिया की भी बात करें तो क्या लगता है फ्यूचर में होटल इंडस्ट्रीज के अलावा फोकस करना हो तो यूथ को कहां फोकस करना चाहिए आपके मुताबिक? आपने पूरी दुनिया घूमी है, काफी कुछ देखा है इतनी छोटी उम्र में, क्या क्या ज्ञान देना चाहोगे आप? देखिए, आईटी जो एक सेगमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी अपने आप में ही जो है वो इतनी आगे बढ़ती जा रही है। तो हॉस्पिटैलिटी के अलावा देखिए, हॉस्पिटैलिटी ने अगर आज मेरे को कुछ दिया है या सिखाया है तो डिग्निटी ऑफ लेबर, दूसरे लोगों की इज्जत करना, कदर करना जो आपके साथ में है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों की कदर करें। और आप इंडस्ट्री या फैसेट कोई भी चुने, आप आर्ट है, लिटरेचर है, कल्चर है, आईटी है, जर्नलिज्म है, इतने
इतने सारे सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर आज की तारीख में लोग जा सकते हैं, सीख सकते हैं, और यूथ जा रहा है। ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक लोगों को दिशा नहीं थी, पर अब मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से ऊपर उठना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और देखिए, मेहनत का कोई दूसरा अपने पास में सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ेगी। और आज की तारीख में जो देश में माहौल बदला है और आया है, परिवर्तन ज़रूर हो रहा है, लोग ज़रूर मेहनत करना चाहते हैं। और यूथ को भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सही दिशा चुने, अच्छी दिशा चुने। रास्ता लंबा है, कठिन है, पर रात को और नींद जो है वो बड़ी मीठी आती है और काम करने का बड़ा स्वाद आता है। जी, गुजरात के टूरिज्म के बारे में आप क्या क्या करें? आपने गुजरात में भी थोड़ा बहुत तो घूमे होंगे, क्या लगता है गुजरात में क्या टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या क्या थोड़ी बहुत कमियां है जिसको सॉल्व करने से गुजरात टूरिज्म भी थोड़ा खिलेगा? राजस्थान की थोड़ा बहुत तो खिल सकता है। गुजरात से मेरा बहुत ही करीबी लगाव है। मेरी माताश्री जो हैं वो इस क्षेत्र से आती हैं, वो कच्छ से आती हैं, तो मेरा गुजरात से जो लगाव है वो आज से नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने इस चीज़ को, इस जानकारी को, इस इल्म को हासिल किया है, तब से मेरी मोहब्बत गुजरात के साथ में रही है। तो यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और वो भी रिटर्न में आपको इतनी ही मोहब्बत देते हैं। और यहाँ की कोई भी चीज़ होती है वो पसंद ही आती है, क्योंकि अगर आपकी माँ यहाँ से हो तो उससे बढ़कर तो और कोई चीज़ मेरे को लगती नहीं कि कुदरत आपको कोई एक तोहफा दे सकता है। पर और यहाँ की जो चीज़ें हैं, देखिए, एक रास्ता चालू हुआ, एक सफ़र चालू हुआ है, तो वो एक खुशी की बात है कि जहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा हो तो वहाँ इंसान कुछ कहे भी। यहाँ ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ काम हो रहा है, तो उसी रास्ते के ऊपर अगर आप लोग चलते रहेंगे तो अपने मुकाम के ऊपर अपन ज़रूर पहुँचते रहेंगे। जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप इतनी छोटी उम्र में काफ़ी प्रगति की है, तो पूरे देश के युवाओं को, गुजरात के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? बस यही कहना चाहूँगा जो मैंने पहले कहा भी, कि अपनी सोच को इतनी गहरी कभी मत करना कि आपके फैसले कमज़ोर होने लग जाएं या अपने इरादों के अंदर आप लड़खड़ाने लग जाएं। अपने फैसलों के ऊपर अटल रहिए, जुझारू रहिए, कर्मठ रहिए, और जो अपने आत्मा में और मन में सोचें उसे ज़रूर करके निभाइए। ચોક્કસથી મનમાં મક્કમ રહીએ તો અને જે ગોલ નક્કી કર્યો એ પૂરો ચોક્કસથી થઈ શકે છે. થોડી આશાઓ સાથે, અપેક્ષાઓ સાથે આગળ વધવાની જરૂર છે. તકલીફો ઘણી બધી આવશે, તેમ છતાં પણ સહન કરવું પડશે અને તેમ છતાં આગળ સફળતા તો મળવાની છે. આ હતા લક્ષ્યરાજસિંહ, જેઓ રોયલ ફેમિલી છે, રોયલ બ્લડ છે, તેમ છતાં પણ ડાઉન ટુ અર્થ છે, પ્રજા સાથે જોડાયેલા છે, ના તો પ્રજા સાથે રહેલો છે. લક્ષ્યરાજસિંહજી, आप GSTV के स्टूडियो में आए, आपका खूब खूब धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक તો આ હતા લક્ષ્યરાજસિંહ, એમની સાથે અમે ચર્ચા કરી અમારી આ વિશેષ રજૂઆતમાં. અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો GSTV. નમસ્કાર. સફળતા એક વિચાર છે, સફળતા એક જનૂન છે, સફળતા એક લક્ષ્ય છે. આંખોમાં અનેક સપનાઓ લઈ આજે દરેક વિદ્યાર્થી વિચારે છે કે પરિણામ પછી શું કરવું, કયા ક્ષેત્રમાં જવું, જે તે ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે કે નહીં. આ દરેક પ્રશ્નોના જવાબ હવે તમને આપશે GSTV. જુઓ કરિયર ગાઈડ, GSTV નો એક અદ્ભુત કાર્યક્રમ દર શનિવારે સાંજે 7:30 વાગ્યે માત્ર GSTV પર. કળિયુગના દેવતા કારુને આપશે ગતિ. જુઓ સંકટ મોચન હનુમાન શનિવાર સવારે 8:30 કલાકે, બપોરે 4:30 કલાકે.